The use of gerunds and gerund phrases in various forms and sentence structures. Present form of gerund V1 plus ing in active voice. Example number 1. Swimming is a good exercise. In this sentence, swimming is the subject of the verb is and it performs as the noun. Since the gerund swimming is performing as the noun, we can place it, this, that in its place. If we use this in place of swimming, the sentence will be this is a good exercise. Second example, he admitted stealing the purse. उसने पर्स चुराने की बात स्वीकार की. In this sentence, the gerund stealing is placed after the main verb admitted as the object of the verb. Stealing the purse is the complete gerund phrase and the purse is the object of the gerund stealing. Third example, he is tired of walking. वह चलते चलते थक गया है. In this sentence, the gerund walking is used after the preposition of. Walking is the object of the preposition of, functioning as a noun in this sentence. Fourth example, what he likes most is riding a bike. उसे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वह है बाइक चलाना. In this sentence, riding a bike is the complement of the verb is. Riding is a gerund and a bike is the object of the gerund riding. Present form of gerund passive voice being plus V3. Example number 1. Being taught by a good teacher helps students learn better. एक अच्छे शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाना छात्रों को बेहतर सीखने में मदद करता है. इस सेंटेंस में बीइंग टॉट यह प्रेजेंट जेरंड फॉर्म पैसिव वॉइस में है. बीइंग टॉट बाय अ गुड टीचर यह एक कंप्लीट जेरंड फ्रेज है और यह हेल्प्स इस वर्ब का सब्जेक्ट है. एग्जाम्पल नंबर 2. दे एंजॉय बीइंग प्रेज्ड फॉर देयर हार्डवर्क. वे अपने काम के लिए प्रशंसा किए जाने का आनंद लेते हैं. इस सेंटेंस में बीइंग प्रेज्ड present gerund form in passive voice for their hard work, object of the gerund phrase being praised और being praised for their hard work यह एक gerund phrase enjoy इस verb का object है. Sentence 3. He is interested in being invited to the party. वह पार्टी में बुलाए जाने में रुचि रखता है. इस सेंटेंस में being invited simple gerund form in passive voice to the party, object of the gerund phrase being invited और is helping verb, interested main verb, in preposition और being invited to the party is the object of the preposition in. Example number 4. My dream is being recognized for my hard work. मेरा सपना है मेरी मेहनत के लिए पहचाना जाना. इस सेंटेंस में being recognized simple gerund form in passive voice for my hard work, object of the gerund being recognized. being recognized for my hard work यह gerund phrase is इस verb का complement है. Use of perfect gerund form having plus V3 in active voice in sentences. Example number 1. Having studied hard for the exam helped her succeed. परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना उसके सफल होने में मददगार रहा. इन दिस सेंटेंस हैविंग स्टडीड हार्ड यह जेरंड का परफेक्ट फॉर्म है, एक्टिव वॉइस में यूज किया है. हैविंग स्टडीड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम यह कंप्लीट जेरंड फ्रेज है और यह हेल्प्ड इस वर्ब का सब्जेक्ट है. एग्जाम्पल नंबर 2.
I remember having met him at the conference. In this sentence, having met is the object of the verb remember. Next example, they were thanked for having helped the poor. Having helped gerund phrase, the poor object of the gerund phrase having helped, and having helped the poor यह एक कंप्लीट gerund phrase for इस preposition का ऑब्जेक्ट है. एग्जाम्पल नंबर 4, his strength was having worked in difficult conditions. उसकी ताकत मुश्किल परिस्थितियों में काम कर लेना था. यानी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में भी उसने काम पूरा किया. इस सेंटेंस में हैविंग वर्कड यह परफेक्ट जेरंड फॉर्म एक्टिव वॉइस में है. इस सेंटेंस में जेरंड फ्रेज यह वाज इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है. नेक्स्ट यूज ऑफ जेरंड, परफेक्ट जेरंड फॉर्म पैसिव वॉइस, हैविंग प्लस बीन प्लस V3. परफेक्ट जेरंड फॉर्म होता है हैविंग प्लस बीन प्लस V3. एग्जाम्पल नंबर 1, हैविंग बीन इन्वाइटेड टू द कॉन्फ्रेंस वाज अ ग्रेट ऑनर. सम्मेलन में आमंत्रित किया जाना बहुत बड़ा सम्मान था. इस सेंटेंस में हैविंग बीन इन्वाइटेड यह परफेक्ट जेरंड फॉर्म पैसिव वॉइस में है और इस सेंटेंस में वह वर्ब का सब्जेक्ट है. Having been invited, perfect gerund form in passive voice. To the conference, object of the gerund having been invited was main verb. Example number 2, he denied having been informed about the changes. उन्होंने इन परिवर्तनों के बारे में सूचित किए जाने का इनकार किया. सिंपल भाषा में अगर कहे तो हम कह सकते हैं उन्होंने इनकार किया कि उन्हें परिवर्तन के बारे में सूचित किया गया था. इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट डिनाइड मेन वर्ब हैविंग बीन इन्फॉर्म्ड परफेक्ट जेरंड फॉर्म इन पैसिव वॉइस. अबाउट द चेंजेस ऑब्जेक्ट ऑफ द परफेक्ट जेरंड फॉर्म हैविंग बीन इन्फॉर्म्ड. इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, डिनाइड मेन वर्ब है, हैविंग बीन इन्फॉर्म्ड यह जेरंड का परफेक्ट फॉर्म है वह पैसिव वॉइस में. अबाउट द चेंजेस यह जेरंड का ऑब्जेक्ट है. एग्जाम्पल नंबर 3, दे वेर रिवार्डेड फॉर हैविंग बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट प्लेयर्स. उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने जाने पर पुरस्कृत किया गया था. इस सेंटेंस में हैविंग बीन सिलेक्टेड यह परफेक्ट जेरंड फॉर्म पैसिव वॉइस में है. इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट, वेयर हेल्पिंग वर्ब, रिवार्डेड मेन वर्ब और फॉर यह प्रीपोजिशन है. हैविंग बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट प्लेयर्स यह फॉर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, His greatest achievement was having been chosen to represent the school. उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाना था. सिंपल शब्दों में कहे तो वह स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया वह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी. इस सेंटेंस में हैविंग बीन चोजन यह परफेक्ट फॉर्म ऑफ जेरंड इन पैसिव वॉइस है. इस सेंटेंस में यह वाज इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है. यूज ऑफ जेरंड एज एन ऑर्डिनरी नाउन इन सेंटेंसेस व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज दैट एक्शन और स्टेट. एग्जाम्पल नंबर 1, द डांसिंग ऑफ द पीकॉक इन द फॉरेस्ट अट्रैक्टेड माई अटेंशन. जंगल में मोर के नृत्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया. इस सेंटेंस में डांसिंग यह जेरंड ऑर्डिनरी नाउन की तरह यूज किया गया है. ऐसे ऑर्डिनरी नाउन्स के यूज के पहले द आता है और उसके बाद ऑफ आता है. द जेरंड इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन इन पॉजेसिव केस इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक्ड हर सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट. इस सेंटेंस में हर यह पॉजेसिव प्रोनाउन है और उसके बाद सिंगिंग यह वर्ब जेरंड फॉर्म में है.
The gerund can be placed in opposition to a noun or pronoun in a sentence. सेंटेंस में हम जेरंड को नाउन या प्रोनाउन के बाजू में रख सकते हैं. इन दिस केस द जेरंड एक्सप्लेन्स और रीनेम्स द नाउन और प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, माई हॉबी रीडिंग नॉवेल्स कीप्स मी रिलैक्स्ड. इस सेंटेंस में रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग यह जेरंड है और रीडिंग नॉवेल यह जेरंड फ्रेज हॉबी को एक्सप्लेन करती है.